Good afternoon, and welcome to Phase 2 press conference of the upcoming mission of the Global Precipitation Measurement. To discuss the mission, we have with us John Stockton, GPM Project Formulation Manager for NASA Headquarters. Mohan Bhargava, Project Manager and Spacecraft Mission Director from Goddard. Over to you, John. Thank you, George. The Office of Management and Budget released the President's 2004 fiscal year budget plan in early February, flagging off the GPM launch. We have in the formulation phase of GPM taken steps to reduce risks to ensure mission confirmation review. And that's where Mohan Bhargava, our project manager, comes in. Thank you, John. Good afternoon, everybody. Before I get into Phase 2, a quick update on the recently concluded Phase 1. In the Phase 1, we focused on the definition of mission scope, systematic measurement approach, and technology roadmaps. Will you roll the tape, please? Thank you. The core satellite is designed like a TRMM spacecraft, and it will be launched in a non-sun-sync orbit at an inclination of 65 degrees and an altitude of 400 kilometers. The constellation satellites would be pre-existing operational, experimental, and dedicated satellites with PNW radio meters. They would operate both in non-sun sync and sync orbits at an altitude of 600 to 900 kilometers. You're welcome to throw out any questions. What are the objectives of Yes, global there we are. precipitation? With the help of the GPM, constellation will work in parallel. associated with Yes, rainfall please. in near real time. Last question. Is this budget justified? Globally, there is a danger of water recession in the near future. It will not be unreal to imagine that in the 21st century, cities like Beijing, Amman, New Delhi, San Diego, Jakarta, Mexico City, Lima, and many others will drink up, use up their surrounding waters and perish. Water is going to be rare. Is it not reason enough to justify any budget? Are there any more questions? Thank you for being here. Yes, thank you. Thank you very much. मैंने आज तक जॉन स्टॉकटन को मुस्कुराते हुए नहीं देखा. He is really happy with us. प्रेस कॉन्फ्रेंस कमाल की थी और तेरा प्रेजेंटेशन excellent. This is really a quantum leap for us. Well, we can now let our hair down. Now that phase 1 is finally over. Hey, तू बड़ा चुप है? क्या बात है? Yeah, I want to get a cup of coffee. तू पिएगा? Yeah, maybe a strong one. Sure. Two new messages. Hi, Mohan. This is Paul. Tried calling you at work on your cell. You seem to be in a meeting. Call me back. Good afternoon, Mr. Bhargava. This is Stephen Carter from the BCIS. Your request for citizenship has been accepted. Congratulations. Please call me in my office on Monday. Bye. Congratulations. अब तू अमेरिका का नागरिक बन सकता है. ए मोहन, कहाँ खो गया? कहीं नहीं. I get it. काम की जिम्मेदारी का दबाव, ऊपर से तेरे कोई शौक ही नहीं है. नो पबिंग, नो पार्टिंग. मेरी बात मान. तुझे शादी कर लेनी चाहिए. तुझे जरूरत है एक जीवन साथी की. और वैसे भी खुशियां दुगनी हो जाती हैं जब कोई साथ हो. मुझे ही देख ले. ये बात नहीं है विनोद. तो फिर क्या बात है? What's the matter? आज मेरे माता पिता की बरसी है.
आई एम सॉरी. इट्स ओके. मुझे आज तक यकीन नहीं होता. मैं यहाँ पेंसिल्वेनिया में अपने आखिरी साल की पढ़ाई कर रहा था जब मुझे उनके कार एक्सीडेंट की खबर मिली. अब समझ में आया कि तू सारा दिन इतना खोया खोया क्यों था. नहीं विनोद, इसके अलावा भी एक बात है जो पिछले कई महीनों से मुझे परेशान कर रही है. तुझे कावेरी अम्मा याद है? कावेरी अम्मा तेरे बचपन की दाई ना? प्लीज उन्हें दाई मत बोल. वो मेरे लिए मेरी माँ समान है. आई एम सॉरी, आई हैड नो आइडिया. व्हाट अबाउट हर? तुझे तो पता है मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा था. उन्होंने मेरी हर मांग को पूरा किया, मुझे बड़े प्यार से पाला पोसा. लेकिन उनके रहते हुए भी कावेरी अम्मा की मेरी जिंदगी में बहुत खास जगह थी. नाश्ता बनाए माँ, अपने हाथों से खिलाए कावेरी अम्मा. रजाई उड़ाए माँ, लोरी सुनाए कावेरी अम्मा. 2 साल की उम्र से लेकर 17 साल की उम्र तक उन्होंने मेरी पूरी देखभाल की. बस ये समझ लो कि कावेरी अम्मा ने भी मुझे पाल पोस कर बड़ा किया. So, when was the last time you met her? अपने माता पिता के अंतिम संस्कार के वक्त मैं छोटे बच्चों की तरह रो रहा था कावेरी अम्मा की गोद में. इट वॉज अ वेरी टफ टाइम फॉर मी. फिर मैं यहाँ लौटा और अब जिंदगी संवारने में लग गया. कावेरी अम्मा अक्सर मुझे खत लिखा करती थी और मैं उन खतों का जवाब भी देता था. फिर बाद में मैं अपने काम में ऐसा उलझ गया कि I just lost touch. All this is so out of the blue, Mohan. I mean, आज अचानक उनका ख्याल क्यों आया? अचानक नहीं विनोद. पिछले कई महीनों से मैं कावेरी अम्मा के बारे में सोच रहा. उनके बारे में बुरे ख्याल आते हैं कि वो बूढ़ी, बेबस, लाचार हो गई होंगी. मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई विनोद. ये बात मैंने अब महसूस की कि मैं उन्हें भूल गया, उनका ख्याल नहीं रख पाया. मैं खुद कर्ज हो गया था विनोद. तो वही एक डोर है जो मेरे माता पिता की यादों को पिरोए. मैं सोच रहा था कि दिल्ली जाके उनको यहाँ पर ले. Absolutely, brilliant idea. लेकिन जॉन नहीं मानेगा. Don't be stupid यार. छुट्टी मांगने का इससे अच्छा मौका मिल ही नहीं सकता. हमारे पास 2.5 हफ्ते हैं जीपीएम प्रोजेक्ट को खत्म करने के लिए. जॉन का भी मना कर ही नहीं सकता. You think so? Yeah, sure. Promise to bring him back an elephant or something. Yeah, sure. They're planning to dump the main drive sometime after the next orbit. White Sands, confirm your Caesar's S-band downlink. Officer DeCosta, my mark. Thank you very much. So, it's of the utmost importance to get the time pressure on the stabilization unit. Thank you very much. Excuse me, John. Sure, tell me. I have a request for 2 weeks off. Need to go to India. Is it possible? Is everything okay back home? Oh, yeah, everything's all right. Just a pending matter. When do you have to leave? Actually, as soon as possible. 28 weeks to launch. You realize you'll have to delegate some of this to others. Oh, yes. I'll have a detailed meeting with the team, and I'll be in constant touch with the notes from there. All right, then. Have a good trip. Thank you very much, John.
कमाल है, जॉन बड़ी जल्दी मान गया। मुझे भी छुट्टी मांग लेनी चाहिए थी। तू मांगता तो मेरी भी कैंसिल कर देता। चल। Yes, thank you. Can I get you anything else? No, I'm all right. This is your captain here. Good morning, everybody. We have now started our descent, and कुछ ही समय में हमारा विमान दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरेगा। आशा करते हैं कि आपकी यात्रा सुखद रही होगी। एयर इंडिया से यात्रा करने के लिए शुक्रिया। Good to see you. Good to see you too. अरे यार फ्लाइट कैसे रही? Connecting flight देर से मिली, otherwise first class. How things with you? मेले कुछ लाया? हाँ बहुत कुछ ला, सब कुछ तेरे लिए लाया हूँ। तो कावेरी अम्मा अब वृद्धाश्रम में रहती है? बात की तूने उनसे? नहीं, मैं उन्हें सरप्राइज करना चाहता हूँ। वो तुझे देखकर बहुत खुश होंगी। मुझे तो भूल चुकी होंगी। Obviously. Excuse me. कहिए, कोई सेवा? कावेरी अम्मा जी से मिलना चाहता था। कावेरी अम्मा? जी। हाँ, कावेरी अब वो आश्रम में नहीं रहती। नहीं रहती? जी, तकरीबन साल भर यहाँ रहने के बाद एक दिन एक लड़की उन्हें ढूंढने यहाँ आई थी और उन्हें ले गई। पर वो कहीं का? एक मिनट, मुझे रजिस्टर चेक करना होगा। जी। भारती जी, ये महाशय कावेरी जी को ढूंढ रहे हैं। कावेरी जी को। आपको पता है वो यहाँ से कहाँ गई? भारती जी और कावेरी जी एक ही कमरे में रहती थी। जाने से पहले उसने किसी गांव का जिक्र किया था। क्या नाम था? हाँ, चरणपुर। हाँ, चरणपुर। ये चरणपुर कहाँ है? कभी सुना नहीं, पता करते हैं। कावेरी थी बहुत नेक। हम सभी उनकी कमी बहुत महसूस करते हैं। ये रहा पता। शुक्रिया। कावेरी बहुत नसीब वाली है। तब भी कोई लेने आया था, आज भी कोई लेने आया।
वरना हम बुद्धू को कौन पूछता है। एक्सक्यूज मी, ये रहा नक्शा, इसमें तुझे चरणपुर मिल जाना चाहिए। 150 रुपए लगेंगे। नहीं नहीं यार, पैसे नहीं चाहिए। अरे यार, मेरा एक काम करेगा, 10 मिनट के काउंटर संभाल, मैं बैंक होकर आता हूँ। लुटने जा रहा है? नहीं यार, संभालेगा ना? अभी बैठ जाता हूँ यार। फिट है। फिट है, जल्दी आइए। Excuse me, you have no respect? क्या हुआ? आपको नजर आ रहा है मैं गिरी हुई किताबें उठा रही हूँ और आप फिर भी ऊपर से पैर रखकर चल रहे हैं। मैंने जानबूझकर तो नहीं किया। भाई साहब, किताबें ज्ञान देती है, संस्कार देती है। अगर आप इनकी इज्जत करना नहीं जानते तो फिर यहाँ आए क्यों? Well, I'm sorry. Thanks. सॉरी, मैं ये मैप देखा। आप ये बुक्स खरीदना चाहते? जी नहीं, बेचना चाहती। Stupid question. I'm sorry. No, I'm sorry. मैं जरा गुस्से में थी। नहीं, मैंने देखा वहाँ क्या हुआ। एक्चुअली आपने सही कहा, कुछ लोग अपनी अकल ही नहीं इस्तेमाल करते हैं। Really stupid. Oh yeah, I'll do this for you. Lots of books. I will need a... वहाँ। Of course. Thank you. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 books of mathematics, ages 17, 13 into 17 is equal to 2 to 1 plus 22 bhasha into 12. 485. 485. That's good. 8 है भूगोल into 19 is 152 and 485 is equal. 637. Yeah, 637. Thanks. And these 8 notebooks into 113. The total is 750. ठीक ही होगा। 750. आपकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी। एक्चुअली मुझे आपको कंसेशन देना चाहिए। किताबें आपने चुनी, हिसाब भी आपने किया, आपको तो एक्चुअली मेरी कुर्सी पे होना चाहिए। तो दीजिए कंसेशन। नहीं दे सकता। मेरा नाम एक्चुअली मोहन भार्गव है, मैं राहुल का दोस्त। राहुल इस दुकान का मालिक है, वो भी यहीं पास में बैंक गया है। He needed some money, कुछ कड़की चल, कुछ पैसा निकालने के लिए। I'm just filling in for him. अच्छा। Oh, I'll pack this for you. And that's okay. Bags. Yeah. मैं इस मैप में चरणपुर ढूंढ रहा था। छोटा सा गांव। आपको मालूम है चरणपुर कहाँ है? हाँ, मुझे पता है। नेशनल हाईवे नंबर 6 पर 110 किलोमीटर पर चरोटी गांव आएगा। वहां आप बाएं मुड़ जाइए और फिर 80 किलोमीटर पर आजमगढ़ आएगा। बस वहां से कच्चे रास्ते पर 20 किलोमीटर पर चरणपुर। आपकी तो ज्योग्राफी भी बहुत अच्छी है। चलो ठीक है। हेलो, आप जरा काउंटर देखिए। हेलो, ओए क्या हुआ? पहले दिन ही नौकरी से तंग आ गया? अरे नहीं यार,
एक लड़की आई थी, बहुत सारी किताबें खरीदी, लेकिन अपने पैसे वापस लेना भूल गई। ओए क्या बात है, पहले दिन ही कंपनी का फायदा, तेरी नौकरी पक्की। बहुत कमाल की लड़की थी। मुझे चरणपुर का रास्ता भी बता गई। अच्छा, कहाँ है चरणपुर? यहाँ से कोई 200 किलोमीटर दूर है। राहुल क्या दे, मुझे माफ कर दे, स्टोर छोड़कर मैं तेरे साथ नहीं चल सकता। अच्छा मत चलना यार, मुझे एक गाड़ी की जरूरत है। मेरी गाड़ी ले जा। अरे नहीं, आई मेंट यहाँ पे कैरावैन मिलेगा? कैरावैन? कैरावैन क्यों? गांव में रहने का कैसा इंतजाम होगा क्या पता। ओके ओके मिस्टर एनआरआई। अरे यार तू। अरे इंतजाम हो जाएगा कैरावैन का, फिक्र मत कर। खोया खोया चाँद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी। चरणपुर के लिए इनमें से कौन सा रास्ता लूं? तुम रास्ता भटक गए हो। भटक गया? नहीं, मैं तो बताए हुए रास्ते पे ही जा रहा था। शायद कहीं कोई मोड़ गलत ले लिया हो। मोड़ गलत नहीं हो तो इंसान गलत हो। चरणपुर यहाँ से काफी दूर है, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम्हें सही रास्ता दिखा सकता। चल रही यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया। फूल सारे झमेले देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। रुम दुम दाना रत दुम दाना रुम दुम दाना रत दुम दाना रुम दुम दाना रत दुम दाना भैया। क्या बात है? गाओ। ये रास्ता है कह रहा अब मुझसे, मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे। ये रास्ता है कह रहा अब मुझसे, मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे। क्यों ये बेताबी, किससे मुलाकात होनी है, जिसका कब से अरमा था शायद वही बात होनी है। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, जीवन गाड़ी है समय पहिया। आंसू की नदियां भी हैं, खुशियों की बगियां भी हैं, रास्ता सब तेरा तक है भैया। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया। फूल सारे झमेले देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। है ना ना है ना ना, देखो जिधर भी इन राहों में,
रंग पिघलते हैं निगाहों में, ठंडी हवा है ठंडी छाँव है, दूर वो जाने किसका गाँव है। बादल ये कैसा छाया, दिल ये कहाँ ले आया, सपना ये क्या दिखलाया है मुझको। हर सपना सच लगे, जो प्रेम अगन जले, जो राह तू चले अपने मन की, हर पल की सीप से मोती ही तू चुने, जो तू सदा सुने अपने मन की। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया। फूल सारे झमेले, देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। मन अपने को कुछ ऐसे हल्का पाए, जैसे कंधों पे रखा बोझ हट जाए, जैसे भोला सा बचपन फिर से आए, जैसे बरसों में कोई गंगा नहाए। जैसे बरसों में कोई गंगा नहाए। खुल सा गया है ये मन, खुल सा गया हर बंधन, जीवन अब लगता है पावन मुझको। जीवन में प्रीत है, होठों पे गीत है, बस ये ही जीत है, सुन ले राही। तू जिस दिशा भी जा, तू प्यार ही लुटा, तू दीप ही जला, सुन ले राही। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कौन ये मुझको पुकारे। नदियाँ पहाड़ झील और झरने, जंगल और वादी, इनमें है किसके इशारे। दुम दुम दाना रत दुम दाना, दुम दुम दाना रत दुम दाना, दुम दुम दाना रत दुम दाना भैया। सनी सा गा 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 मा 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 रे रे रे, सनी सा सा सनी सा सा, सनी सा गा 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 सा मा 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 सा पा पा, सनी सा सा सनी सा सा, यूं ही चला लो, सनी सा सा सनी सा सा, कितनी हसीन ये दुनिया। एक्सक्यूज मी, भाई साहब, ये कावेरी जी कहाँ रहती? राजू को इन्हें कांवरी जी के पास ले जा। सॉरी। अरे कमाल है। इसे ना सुबह शाम इसी तरह से मालिश किया करो। मैं तिली थोड़ी सी रोएगी बस, समझी? हाँ।
अब बोल। तुमसे को मिलना है एक बहुत बड़ी गाड़ी में। बहुत बड़ी गाड़ी में? अरे हाँ, चलो वो गाड़ी बाहर खड़ी है। आ रही हूँ, आ रही हूँ। चिकू, ये तेरी कोई शरारत तो नहीं है? वो देखो। हाँ? कितनी बड़ी है ना? क्या हो रहा है ये? कौन है? बताइए, सोचिए। नहीं बता सकती। कौन हो तुम? चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अटकन बटकन दही चटोकन, तू यशोदा, मैं हूँ कावेरी। मोहन, मेरा मोहन। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। जानते हो ये कौन है? ये मेरा मोहन है, मोहन, जिसके बारे में मैं बताती रहती हूँ ना। चल चल, तू यहीं रुक, अंदर कदम मत रखना, मैं अभी। हाँ, अब अंदर आ सकता है। कावेरी अम्मा। अरे ये क्या कर रहा है? मुझे कितनी खुशी हो रही है तुझे देखकर, मैं बता नहीं पा रही हूँ। आने दो गीता को, बताऊंगी उसे कि अपनी शर्त जीत ली है मैंने। शर्त? मैं कुछ समझा नहीं। वो गीता है ना, हमेशा मुझसे कहती थी कि तू मुझे भूल गया है। अच्छा? पर मैं कहती थी कि नहीं, वो मुझे मिलने जरूर आएगा। इसी बात पर हम दोनों में शर्त लग गई कि अगर तू आया तो उसे मुझे आइसक्रीम खिलानी पड़ेगी। आइसक्रीम? कावेरी अम्मा। क्यों? क्योंकि अब भी तुम वैसे ही हो। आज भी तुम्हारी आइसक्रीम खाने की आदत गई नहीं। क्यों नहीं? आइसक्रीम क्या सिर्फ बच्चे खा सकते हैं? बूढ़ों के लिए मना है। बैठ। नहीं बाबा नहीं, बस। और वैसे भी कौन कहता है कि तुम बूढ़ी हो? अच्छा, ये गीता कौन है? ले, बचपन में तो उसी के साथ खेला करता था। वो हमारे दिल्ली वाले घर में कभी कभार आती थी अपनी माँ के साथ। ओह, कहीं तुम्हारा मतलब उस गितली से तो नहीं? हाँ, उसी नाम से तो उसे पुकारता था। और ये है नंदन, गीता का छोटा भाई। हम सब इसे प्यार से चिक्कू कहते हैं। चिकू? हे चिकू। पेट दर्द है ऐसा झूठ मूठ कह के आज स्कूल से छुट्टी ले ली है। कितने साल के? 8। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मैं नवोदय पाठशाला में पढ़ता हूँ। मैं रोल नंबर 6 है और मैं 4ठी कक्षा में हूँ। हमारे स्कूल का सिद्धांत है कि किताबें ज्ञान का सागर होती है और ज्ञान ताकत। तुम्हारा स्कूल तो बहुत अच्छा मालूम पड़ता है, फिर गए क्यों नहीं? वो मेरे पेट में दर्द था। अच्छा, यहाँ था दर्द? इधर। मैं स्कूल देखने चलोगे? अभी नहीं, मुझे अम्मा से बातें करनी। नहीं, चलो ना, मेरा स्कूल देखने।
ठीक है चिकू। तू एक काम क्यों नहीं करता मोहन? तू चिकू के साथ जाकर स्कूल देख ले, वहाँ गीता से भी मिल ले, वो वहाँ पढ़ाती है। लेकिन चीकू के पेट में तो दर्द था। वो दर्द था किन चला गया। चलो ना मैं स्कूल देखने। वो पोस्टमैन चाचा है। अजी पोस्टमैन क्या, हल बैल खेत बीज फसल अनाज सब कुछ हूँ। चिट्ठी छाटू भी, बांटू भी और मोहर भी लगाऊं। 22 किल पर पोस्टमैन और कुर्सी पर पोस्ट मास्टर। नाम है मेरा निवारण दयाल श्रीवास्तव। बताइए आपकी क्या सेवा करूं? अमेरिका फोन लग जाता है यहाँ से? यहाँ एलजी नहीं, मिजवा गांव के जरिए लाइन लेनी पड़ती है। वैसे यहाँ नो बैंक, नो बॉन्ड, नो रजिस्ट्री। माफ कीजिएगा, आज आते वक्त थोड़ी तकलीफ हो गई आपको। कोई बात नहीं, आप विदेश में रहते हैं ना? जी। मुझे भी थोड़ी अंग्रेजी आती है। What can I do for you? Very good. मोहन भैया ये देखो, ये मेरा स्कूल है। बहुत अच्छा है चिक। 1942 भारत छोड़ो का नारा पहली बार मुंबई में सुनाई दिया। मुंबई से लाहौर गोलबाग तक, गोलबाग से लेकर किस्सा खानी पेशावर तक आजादी के दीवाने अंग्रेजों की फौजों के साथ भिड़ गए और सटासट लाठियां चली, तड़ातड़ गोलियां बरसी, लेकिन हम सब झेलते रहे। किसी एक ने भी हाथ नहीं उठाया। मेरे कंधे पे भी गोली लगी। फरंगियों ने तंग आकर हमें जेल में डाल दिया। हम भावी नारे लगाते रहे, इनकलाब जिंदाबाद। तब आपकी दाढ़ी थी? अगर मेरी दाढ़ी होती तो मुझे कंधे पे गोली थोड़ी लगती, बालों में घुस के तो गुम हो जाती। हम दोनों चलते हैं। हम सब चलते हैं। शाबाश। कमला, अब तुम कहो। मैं चलता हूँ। अरे आप, मैं आपके बताए हुए रास्ते को शायद ठीक तरह समझ नहीं पाया और खो गया। माफ कीजिए, ये स्कूल है और मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ। I'm sorry. मोहन भैया ये गीता दीदी है और दीदी ये मोहन भैया है। अमेरिका से आए हैं। कारिका से नहीं चीकू, अमेरिका से। चिकू, तू घर के बाहर क्या कर रहा है? तेरे पेट में दर्द था ना? अम्मा ने कहा कि मोहन भैया को स्कूल दिखाओ, इसलिए। तुम गीता हो? पहचाना मुझे? बचपन में तुम्हें गितली कहकर पुकारता था। बच्चे पढ़ रहे हैं, आप जाएंगे? I'm sorry. अब आई बात समझ में, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी। अरे हाँ, याद आया, तुम ये 50 रुपए भूल गई थी। थैंक यू। अब आप जाएंगे? हाँ। I'm very sorry. मैं चलता हूँ। वेरी गुड। क्या है ये? फुट मसाजर, तुम्हारे पैर का दर्द दूर कर देगा। अभी बिजली नहीं है। क्यों? यहाँ तो ऐसे ही आती जाती रहती है। अच्छा, तो अब कब आएगी? कुछ कह नहीं सकती। हफ्ते में 3-4 बार तो यही होता है। ये कौन है? गीता के माँ बाप शांता और जगमोहन जी, जिन्होंने यहाँ चरणपुर में पाठशाला शुरू की। चिक्कू जब 5 साल का था तब जगमोहन जी चल बसे। उस वक्त गीता दिल्ली में कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। जैसे ही उसकी पढ़ाई पूरी हुई वो यहाँ आ गई और पाठशाला चलाने में शांता की मदद करने लगी। लेकिन शांता की तबीयत बिगड़ती चली गई। मरने से पहले उसने गीता को भेजकर वृद्धाश्रम से मुझे बुलवा लिया और दोनों बच्चों की जिम्मेदारियां मुझ पर सौंप गई।
I'm sorry. आज देर हो गई। हाँ, पेपर्स करेक्ट करने थे, सोचा वहीं पे कर लो। दीदी, दीदी, देखो, मोहन भैया मेरे लिए क्या लाए? पता है मैं तेरे लिए क्या बनाने वाली हूँ मोहन? अरे वाह, तेरी मनपसंद तड़का दाल, आलू की सब्जी और खीर। वाह। गीता, अब तुझे आइसक्रीम खिलानी पड़ेगी। तू शर्त हार गई। वाह कावेरी अम्मा, तुम्हारे हाथ से बने खाने के लिए तरस गया था। खीर तो बहुत ही अच्छी थी। मैं जानती थी तुझे अच्छी लगेगी। मेरी छोड़, अब तू बता तेरे और अमेरिका के बारे में। अमेरिका में सब ठीक है। हैव ऑल द कंफर्ट्स, सारी सुख सुविधाएं हैं। मैं बहुत खुश हूँ ये सुनकर। और तेरा नशा कैसा चल रहा है? नशा? हाँ, क्यों छोड़ दिया? नशा? नासा 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 वही रे। मेरा नशा ठीक, मेरा नासा का काम अच्छा चल रहा है। तुम एस्ट्रोनॉट हो? नहीं नहीं, मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ फॉर ग्लोबल प्रेसिपिटेशन मेजरमेंट, GPM। ग्लोबल प्रेसिपिटेशन मेजरमेंट, वेरी गुड। मोहन भैया, ये देखिए। वाह, वेरी गुड। तुम तो बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते हो। चिकू, तुम आज स्कूल नहीं गए हो, तुम्हारी पढ़ाई भी रह गई है। चलो। गुड नाइट चिकू। गुड नाइट बोलो। गुड नाइट। कावेरी अम्मा, मुझे तुमसे माफी मांगनी है। माफी? किस बात की? आई एम सॉरी, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया। अरे क्या बोलने लगा है तू? कहने दो कावेरी अम्मा। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत थी, मैं तुम्हारे पास नहीं था। आई एम सॉरी कि तुम्हें एक वृद्धाश्रम में जाकर रहना। एक और लफ्ज नहीं बेटा, ये सब नसीब की बातें होती है। मेरे पास वहां सब कुछ, बस तुम नहीं। आई मिस यू वेरी मच कावेरी अम्मा। मेरे साथ चलोगी? कहाँ? अमेरिका। अमेरिका? नहीं, मैं यही ठीक हूँ। ऐसा चलो तो सही, वहां पर बहुत आराम है। बड़े से बड़ा काम यूं चुटकी में हो जाता है। इट्स अ मच बेटर लाइफ दैट। मैं सोचती हूँ इसके बारे में। अब चल उठ, चल। तू यहाँ सो जा। यहाँ? अगर एतराज ना हो तो मैं अपने कैरावान में सो जाऊं। अब ये कौन सी मशीन है नींद लाने की? कुछ ऐसा ही समझ लो। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।
कहिए कहिए। सर आई एम मीनाराम। हेलो, क्या चाहिए? सर मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लाया हूँ, प्लीज टेस्ट कीजिएगा सर। नाश्ता अभी नहीं, अभी वो। सर प्लीज, मैंने सिर्फ आप ही के लिए स्पेशली बनाया हूँ। आई एम वेरी गुड रसोइया, मतलब कुक। गॉट इट, मतलब समझ गया। अब बहुत अच्छे कुक है, मतलब रसोइया। थैंक यू सर। वेरी नाइस। आप अमेरिका से आए हैं सर? एक क्वेश्चन है सर, क्या अमेरिका में बहुत सारे हाईवे हैं सर? है, लेकिन वहां पे उन्हें फ्रीवेज कहते हैं। गॉट इट, मतलब समझ गया। और एक क्वेश्चन है सर, बैठिए। क्या उस फ्रीवेज पर ढाबा है सर? ढाबा? हाँ हाँ है, क्यों? आप क्या थिंक करते हैं, अगर उस फ्रीवेज पर इंडियन ढाबा खोल दें तो चलेगा? आई थिंक चलेगा। चलेगा? आई थिंक शायद। थैंक्स फॉर द ढाबा, नाश्ता। आपकी अगर इजाजत हो तो अब मैं तैयार हो जाऊं प्लीज। क्यों नहीं सर, आई विल मीट अगेन सर। थैंक यू ठेला राम। सर मेला राम, सॉरी मेला। सर लास्ट क्वेश्चन। सर आई विल गिव यू वेरी गुड ऑफर सर। हम पार्टनरशिप में ढाबा खोलते हैं। आई विल गिव यू 50%। हाँ, अपनी कमाई का आधा हिस्सा आई विल गिव यू। मैंने ढाबे का नाम भी सोचा है सर। इट विल बी कॉल्ड मेला राम ढाबा। ओके ओके, हैप्पी, वेरी हैप्पी। इट्स अ डील सर। डील। जय राम जी की। जय राम जी की।